Rhythm. The rhythmical movement of the moon is the witness of your perfection. My words, my soul are the witness of the oneness of the glory Allah, whose glorification cannot be described in words. A very warm welcome to our guest and our honorable audience, and good afternoon, everyone. We are honored to have Dr. Roman Hasib, and we are extremely happy to welcome you, sir. I, Noor Fatma, with my co host, Sir Kashan Ishfaq, welcome our honorable faculty members, deans, and we are glad about your presence. Main purpose of our event is to spread awareness about how to get foreign scholarships, which is apprehend from the platform of Society of Polymer Engineering. Now, without further delay, we start our session with the greatest name of Allah Almighty, who is the most merciful and the beneficent. For the purpose of Tilawat Quran, I would like to call Mr. Salman Rashid. Please turn on your mic. Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम। Start करूं सर? जी करो स्टार्ट। सलमान स्टार्ट। जी सर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ
وقعت الواقية فيومئذ وقعت الواقية صدق الله العظيم. Jazakallah, mashallah. Now, further, before wasting our time, I will introduce yourself to our honorable guests who ज़रा थोड़ा सा मसला है सर का, तो वो थोड़ी देर तक आते हैं. तो first we have to introduce you about them. He is the finest student of MSc class, guest speaker of University of Lahore, winner of HSC Indigenous Scholarship, winner of Chinese Scholarship. So, sir, please turn on your mic and give some info. Amir Hamza, turn on. Assalamu alaikum, everyone. First of all, I would like to say thank you very much for the great introduction. But now the problem has been solved because I was unable to share my screen. So let us share my screen first, then we will talk further. Yeah. Thank you so much, sir. I start with the name of Almighty God who creates. Good afternoon, everyone. I am Roman Hasib, and today I'm going to talk about one of the most desirable, but at the same time, very important opportunities. Here, they are entitled as Scholarship Council for Higher Education. Before I move any further, I would like to say that I am very grateful to be invited by National Textile University, one of the most esteemed institutions in Pakistan. I'm also very thankful to the Dean Faculty of Engineering, Head of Department, respected faculty members, dear students, convener, the President of Polymer Engineering Society, and other team members who organized this webinar and gave us an opportunity to express our ideas and to learn something new. Their efforts to manage this seminar are highly acknowledged. So, my valuable audience, I want you to make sure that the material and information used in this presentation is in summary form and has been prepared by me on the basis of valuable fact-based information, personal experience, gain knowledge which I have about the scholarship, and somewhere with the help of some search engines. Most importantly, this presentation does not represent any third party or any specific organization or any particular scholarship offering institution. And the purpose of this presentation is to provide you the basic and necessary guidelines, important informations, and key points for scholarship for those almost every student is looking for. Other than this, the useful links of very useful websites, additional information, if required, will be shared with you in the session of Q&A, which is the second part of this presentation. So this is going to be the main theme of this presentation, comprising the background of scholarship, in which we will discuss about the introduction, the types of scholarship, what are the awarding bodies, and then we will talk about the false concepts about scholarship, which many students have. And then there is the most important part of this presentation, and that is about plan of action, that what we have to do in order to obtain the scholarship, how we can do this, and what procedure we have to go through. Afterwards will be the general information which you should know, and in fact every student should know about the scholarship. And finally, this presentation will conclude with the Q&A session where you can ask the questions. One thing I want to say here, with due respect, you are requested to please keep your mic turned off during the presentation. And if you have any question, keep it in your mind, or you can even note it down. And later on in Q&A session, you will be given a chance to ask it. Your cooperation in this matter will be greatly regarded.
I would also आपकी आवाज आना बंद होगी, काइंडली चेक कीजिएगा। मेरी भी नहीं है सर। आपका माइक ऑफ है सर, वो काइंडली जरा कर लीजिएगा। मेरी भी नहीं आ रही। I'm sorry. ये कब ऑफ हुआ था? मैंने तो टर्न ऑन करके स्टार्ट की थी प्रेजेंटेशन। 2-1 मिनट पहले हुआ। Oh, I'm very sorry. Okay, I will talk again about this. So here I was saying that this is going to be the main theme of the presentation. It will have two parts. In the first part, that is the main body, and it will consist on, first thing is the background of scholarship. We will discuss about the introduction, what are the types, and what are the awarding bodies who offer the scholarship to the students. We will also talk about false statements which many students have in their mind. We have very wrong concepts about the scholarship, and we will also discuss them. And then there will come the main part of this presentation, and that's the very important actually. That is that what I should do to obtain the scholarship, what steps I have to take, and how I can achieve the scholarship. This is very important to understand. And then there will be the general information in which we will discuss about the ranking problems, and there are many other things which are necessary to know the students before they apply for any type of scholarship. And finally, there will be open dialogue discussion with you guys, and if you have any question, you can ask questions and we will discuss the things over there accordingly. So here we go. This presentation has two parts, in fact. The part one is the main body, and this is the pattern which we will follow, in which there will be a short introduction about the scholarships. We will discuss the sources. We will discuss about the misbeliefs about the scholarship which we have, and what are the requirements and procedure, which is the most important thing. And then there also will be the general information. And in the second part, that is all about the discussion. And if you have questions, we will discuss in that section. So most of the times for the students, selection of right institution, right university for their higher studies and field of study, you can say the major of the study, a selection of these two things is a very difficult decision for students to make, and especially when we have keep in mind that the finance is also a key factor, particularly when we are trying to study in any foreign country. And because this is what our future will be influenced by. But you do not need to be worried about this, because I hope this ongoing webinar will have enough information to guide you very properly that how to take an initiative and how to take admissions in any institution or how to obtain any scholarship. So first of all, although every one of us is somehow familiar with the term scholarship, but if we become the more specific and if we look at the Oxford Dictionary, what it says about scholarship, a scholarship is basically a grant or payment made to support a student's education awarded on the basis of academic or other achievement, and all those expenses during the education also. So moreover, you have to keep in your mind that the scholarship, this thing was started a century ago in 1904, and you do not need to repay the scholarship, because sometimes students think that what if I will fail during the study if I have obtained the scholarship, so will the institution get back their scholarship? They will get back their money? No, happen. And the scholarship is being offered for both private and public universities, we say government universities, and it is applicable to all study levels. It is not only for master, PhD, but it also for bachelor level. So by continuing the previous content, now we will talk about the types of scholarship.
because it is very important to have the basic knowledge of scholarship if we are going to take an action, and if we are going to talk about, if you are going to know about the scholarship. So please do not jump directly on the procedures. First, make a great concept about the scholarship. So in fact, scholarship has two types: fully funded. Now, what does mean by fully funded? fully funded का मतलब ये है कि आपकी स्टडी के दौरान जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ऑफ कोर्स इफ यू विल गो अब्रॉड, उसके दौरान आपकी ट्यूशन फी है जो हमारे यहाँ पे पर सेमेस्टर होती है या पर ईयर होती है, वो फीस देयर विल बी नो नीड टू पे दैट फीस, जो यूनिवर्सिटी होगी वो खुद पे करेगी। दूसरी चीज़ आती है लिविंग एक्सपेंसेस। आप हॉस्टल में रहते हैं, आप डॉर्मिटरी में रहते हैं, समटाइम्स ये डॉर्मिटरीज इनसाइड द यूनिवर्सिटी भी होती हैं और समटाइम आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे गए हुए हैं तो ये अकामोडेशन जो है ये भी यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो आपको उसमें सिंगल रूम, डबल रूम, ये डिपेंड करता है कि आपका स्टडी लेवल कौन सा है। जहाँ पे मैं होता हूँ वहाँ पे तो ये है कि अगर मास्टर के स्टूडेंट्स हैं आप, तो वहाँ पे वो शेयरिंग में रूम देते हैं 2 स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं तो वो आपका सिंगल रूम होता है। बात करने का मकसद ये है कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की होती है। तीसरी चीज़ है ट्रैवल एक्सपेंसेस। ट्रैवल एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि जब आप फ्लाई करके जाएंगे, फर्स्ट टाइम आप उस यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो जो उसका टिकट, एयर टिकट की प्राइस होगी या उसकी जो वो होगी, वो परचेजिंग भी आपको यूनिवर्सिटी पे करेगी। दूसरा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा काइंडली। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जब हम जाएंगे और अगर 6 मंथ्स बाद वापस आते हैं तो हमें यूनिवर्सिटी पे करेगी, फिर हम जाएंगे। नो, जो ये ट्रैवल अलाउंस होता है, अगर ये आपको यूनिवर्सिटी दे रही है तो वो सिर्फ 2 टाइम्स ड्यूरिंग योर होल स्टडी ड्यूरेशन, एक जब आप जाएंगे और एक जब आप फाइनली वापस आएंगे अपनी डिग्री कंप्लीट करके। लास्टली, मंथली स्टिपेंड। मंथली स्टिपेंड का मतलब ये होता है कि इन सारी चीज़ों के अलावा आपको वो यू कैन से, इसको वहाँ पे टर्म बोली जाती है, सैलरी भी बोलते हैं, कि वो आपको एक्स्ट्रा मनी देते हैं कि आप अगर वहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं इसके साथ। तो दिस इज़ कॉल्ड फुली फंडेड। यू डो नॉट हैव टू बी वरी अबाउट एनीथिंग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेडिकल अलाउंस, इसमें खुदा न खास्ता अगर आपको कोई मेडिकली कोई इशू बनता है तो उसको भी यूनिवर्सिटी जो है वो बेयर करेगी। नाउ वी कम टू द सेकंड वन, दैट इज पार्शियली फंडेड। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें मैक्सिमम क्या होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज ये कहती हैं कि जी हम आपकी ट्यूशन फी जो है वो 50% आपको छोड़ देंगे, 50% आपको देना पड़ेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जी ठीक है हम आपकी 100 ट्यूशन फी जो है वो वेव कर देते हैं, बाकी आपको देना पड़ेगी। तो ऑब्वियसली इसमें आपको अकोमोडेशन खुद को रखना पड़ेगी, इसमें ट्रैवल अलाउंस नहीं होंगे, इसमें आपका मंथली स्टिपेंड नहीं होगा, इसमें आपका मेडिकल अलाउंस नहीं होगा। अब हम फर्दर स्लाइड्स में जाके देखेंगे कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप को कैसे ऑब्टेन करते हैं, पार्शली क्या होती है, इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं। ये आगे हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कौन सी कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ दूसरी टाइप्स भी हैं स्कॉलरशिप की जिनके बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएशन, मैं भी जब बैचलर में था तो मैं भी गूगल पे या सर्च इंजन पे ऐसे ही सर्च करता था कि स्कॉलरशिप या स्कॉलरशिप फॉर मास्टर डिग्री एंड एक्सेट्रा। लेकिन इन चीज़ों का पता होना चाहिए क्योंकि इनके अंदर फिर पॉसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। मेरिट बेस्ड, ऑब्वियसली इट इज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड। ठीक है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है एकेडमिक तो आप ये ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरी एक टाइप होती है एथलेटिक अचीवमेंट। इट इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स इन फॉरेन कंट्रीज, मोस्टली फुटबॉल और स्विमिंग एट्सेट्रा। अगर इसमें आपकी अपने कंट्री के अंदर आपकी कोई अचीवमेंट है तो उसकी बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे। फाइनेंशियल नीड, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर सकते एक्सपेंसेस को, तो उनके लिए भी ये डेविस पोर्टर जो है, ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि ये वर्ल्ड वाइड एक नॉन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल नीड जो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते उनको ये ऑफर करते हैं। इसके अलावा होता है स्टूडेंट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ की, दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक बैंक। अब ये सिर्फ किनको ऑफर करेंगे, ये मुस्लिम्स को करेंगे, से ये नॉन मुस्लिम्स को नहीं करेंगे। तो ये क्या आ जाता है, रीजन ओरिएंटेड।
उसके अलावा फैमिलीज वर्क प्लेस, अगर आपकी एफिलिएशन मिलिट्री है, आपकी फैमिली में से कोई पर्सन वगैरह में है तो उनके लिए भी ये होती है। उसके अलावा पर्सनल बैकग्राउंड, ये इसका मतलब ये है अंडर रिप्रेजेंटेड स्टूडेंट्स वो होते हैं, कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल फीमेल्स जो हैं वो तादाद में कम होती हैं या उनको उस तरह से राइट्स नहीं दिए जाते, तो ये फिर स्पेशली उनके लिए होती हैं। कीप इन माइंड प्लीज, ये जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं ये फुली फंडेड भी हो सकती हैं, ये पार्शली भी हो सकती हैं, एक्सेप्ट द फाइनेंशियल नीड। दूसरा, अब हमें ये पता होना चाहिए हु अवार्ड द स्कॉलरशिप, सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से स्कॉलरशिप हमें मिल सकती है। द फर्स्ट थिंग इज द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल हमारी पाकिस्तान में एकेडमिक जो ऑफिशियल्स हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन है। जब मैंने 2019 में इसके लिए अप्लाई किया था, जुलाई 2019 में मेरा इंटरव्यू हुआ था इस्लामाबाद में, तो इसमें ये होता है कि आपको HEC सेलेक्ट करती है और वो आपको फॉरेन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज़ में भेजेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर फील्ड ऑफ स्टडी। पॉलीमर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, तो जो अच्छी यूनिवर्सिटी वो आपको उसमें भेजेंगे। तो ये होती है गवर्नमेंट जो आपको सपोर्ट करती है। और जो मैंने पीछे बात की थी कि एयर टिकट्स होते हैं, वो ज़्यादातर कि अगर आपकी स्कॉलरशिप हो तो एयर टिकट्स आपको तब ऑफर किए जाते हैं। दूसरी अवार्डिंग बॉडी है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है, वो हो सकता है कि आपको सपोर्ट करे और आपको कहे जी हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं, आप हमारे पास अपना मास्टर जो है वो कंटिन्यू करें, ठीक है। तीसरी चीज आ जाती है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस, जिस तरह के NGOs होती हैं जिनका कोई डायरेक्ट गवर्नमेंट से या डायरेक्ट आपके इंस्टीट्यूट से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो आपको सपोर्ट करने के लिए वो आपको फंड करती हैं। एंड द लास्ट वन इज इंडिविजुअल डोनर्स। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जिस तरह हमारी वो ईदी सर्विस है, अगर आपको कोई ऐसा डोनर फिलांथ्रोपिस्ट है जो आपको जो है वो फंड करता है और वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं। तो ये होती हैं अवार्डिंग बॉडीज कि आपको स्कॉलरशिप ऑफर कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है या एकेडमिक इंस्टीट्यूट कर रहा है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, प्लीज लिसन इट केयरफुली। ढेर सारे स्टूडेंट्स, इवन व्हेन आई वाज इन बैचलर, तो मेरे भी कुछ कॉन्सेप्ट स्कॉलरशिप के बारे में थोड़े से डिफरेंट थे, वो मैंने यहाँ पे समराइज करने की कोशिश की है, उसको हम वन बाय वन क्विकली देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि टैलेंट ब्रिंग स्कॉलरशिप होम। इफ़ आई एम वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, तो मुझे स्कॉलरशिप सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे खुद कोई ना कोई कॉन्टैक्ट करेगा और आपको स्कॉलरशिप देगा। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। आप करनी है, आपने एक्सप्लोर करना है, आपने सर्च करना है। दूसरी चीज़ है कंपटीशंस रिड्यूस द चांसेस। कुछ स्टूडेंट्स इसलिए भी परेशान हो जाए जी, देखें एक स्टूडेंट का GPA 3.5 है, मेरा 3.2 है, तो मैं तो अगर सेम जगह पे हम दोनों अप्लाई करेंगे तो शायद मुझे तो मौका नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा, प्लीज कीप इन योर माइंड, स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ GPA मैटर नहीं करता, कीप इन योर माइंड, ठीक है। वो डिटेल से देखेंगे जी कौन कौन सी चीज कितनी कितनी मैटर करती है, ठीक है। सो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। तीसरी चीज है जी, आई एम एन एकेडमिक स्टार, आई विल इजीली सिक्योर अ स्कॉलरशिप। अप्लाई करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी है, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो मुझे तो कोई इशू नहीं होगा इस स्कॉलरशिप को ऑब्टेन करने में। ऐसा नहीं होता। रिमेंबर वन थिंग, प्राइड गोथ बिफोर फॉल। इसमें प्राइड नहीं होना चाहिए। इसमें अप्लाई करते वक्त ये भी काइंडली माइंड में रखें कि ये भी हो सकता है कि किसी और कंट्री का कोई स्टूडेंट जिसके ग्रेड्स आपसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, हो सकता है वो भी सेम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप काइंडली माइंड में रखा करें। नेक्स्ट आता है जी, स्कॉलरशिप पेपर वर्क इज मच टाइम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए इस प्रोसेस के पीछे पड़ते हैं और फिर इसको हैं तंग आके कि यार ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये तो बड़ा टाइम टेकिंग है, मैं इसको नहीं कर सकता, पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। ऐसी बात नहीं है। हालांकि ये टाइम प्रोसेस है, बट यू हैव टू कीप ट्राइंग फॉर दैट एंड यू हैव टू कीप होपिंग फॉर दैट, ठीक है। इसके लिए टाइम लें, टाइम लगता है, नो प्रॉब्लम। ऑलवेज रिमेंबर गुड थिंग्स टेक। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि ऑल दो मेरा GPA तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास कोई एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं है जिसकी वजह से मैं स्कॉलरशिप को विन नहीं कर सकूंगा। ऐसी बात नहीं है।
अगर आपका एक एबिलिटी अच्छी है, हो सकता है आपके जो कंपिटेटर्स हैं, जो आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, वो उस एबिलिटी में या उस क्वालिटी में इतने अच्छे ना हो जितने आप हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ जीपीए मैटर नहीं करता, इसको हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगेन वही बात, ओनली एकेडमिक स्टार विन स्कॉलरशिप्स, ऐसी बात नहीं है। एवरीवन कैन हैव अ ट्राई, एवरीवन कैन हैव अ चांस। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा सा काइंडली बी अटेंटिव। इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि जी अब मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली, या मैं 7th 8th सेमेस्टर में हूँ, अब मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो नेक्स्ट अब मैं सर क्या करूँ, इनिशिएटिव कैसे लूँ, फर्स्ट स्टेप मेरा कौन सा होना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, you have to explore the things and you have to make a decision. What does that mean actually? सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैंने जाना किस कंट्री में है या मैं किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को तो ये पता होता है कि यूके में जाना है और मैंने लंदन स्कूल में जाना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप सर्च पे जाएंगे, गूगल है या कोई भी है सर्च इंजन, फॉर एग्जांपल उस पर आप लिखते हैं जी, एक्चुअली जो आपकी पॉलीमर इंजीनियरिंग है इसकी आगे स्पेशलाइजेशन मटेरियल इंजीनियरिंग में है। तो आप क्या करेंगे जी, आप यू नो नथिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशंस, अबाउट द कंट्रीज, आप गूगल पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे जी टॉप 10 मटेरियल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, टॉप 10 मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। और अगर आपको पता है कि मैंने यूके ही जाना है, तो आप क्या लिखेंगे, इन द यूके। तो इससे क्या होगा, आगे जाके थोड़ा सा मैं आपको क्विक डेमो भी दूंगा इंटरनेट पे कि ये चीज़ें सर्च आउट कैसे करते हैं क्विकली। ठीक है, आपने सर्च किया, आपको पता चल गया कि यार ये जो 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, आपका माइंडसेट बन गया जी मैंने मटेरियल इंजीनियरिंग करनी है, मैंने यूके से करनी है, और मुझे ये जो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये मुझे अप्रोप्रिएट लग रही हैं, मुझे अच्छी लग रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हुई है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने लंदन स्कूल में ही पढ़ना है, तो मेक श्योर कि आपकी ये सिलेक्शन ठीक है। आप उसको क्रॉस चेक करें गूगल पे जाके, उसकी रैंकिंग वगैरह स्टैंडिंग्स देखें, उसके रिसर्च स्कोर्स देखें, ये चीज़ें देखें सारी जाके। तो जब आपका एक डिसीजन हो जाए जी मैंने यूके जाना है, मैंने लंदन स्कूल जाना है, इंडिया जाना है, आप 4 से 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को माइंड में रखें। ठीक है, सिर्फ एक पे ही आप फोकस ना करें काइंडली, 4 to 5 और मोर देन 5 यू हैव टू कीप इन योर माइंड। उसके बाद जब एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो गई, 3-4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो गई, उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द फैक्ट्स, इन डेप्थ स्टडी करना है उस यूनिवर्सिटी को। आप गूगल पे जाएंगे, आप अपना डिपार्टमेंट देखें, पॉलीमर का, मटेरियल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, उसको एक्सप्लोर करें। व्हाट डज दैट मीन बाय एक्सप्लोरिंग द डिपार्टमेंट? इट मीन्स दैट यू हैव टू नो कि उनकी रिसर्च फील्ड्स किस तरह के हैं। जिस तरह से मैं आगे मटेरियल्स में, एफआरपीज में काम करना चाहता हूँ, क्या ये डिपार्टमेंट उस तरह से काम करवाता भी है कि नहीं करवाता, इनकी लेबॉर्ट्रीज कैसी हैं। जब ये चीज़ें देखेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं। अब ये ना सोचें जी वहाँ पे लैब्स का क्या मेंशन होगा, ये एवरीथिंग इज मेंशन ओवर देयर। उसके बाद आपने उनकी फैकल्टी, आई मीन प्रोफेसर्स देखने हैं कि कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं, उनमें किस, हर एक का रिसर्च फील्ड होता है ना, वो डिफरेंट होता है। एफआरपी बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है, हो सकता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो कोई और प्रोफेसर हो, जिसमें आपका दोस्त इंटरेस्टेड है रिसर्च में वो कोई और प्रोफेसर, उसका फोकस अच्छा हो उस पर। ठीक है, यहाँ पे फैकल्टी के ऊपर आप गौर से देखें तो मैंने स्टेरिक लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है स्पेशली फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, जब पीएचडी स्टूडेंट्स या एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है कि उन्होंने जिस रिसर्च में या जो काम करना है उसके रिलेटेड प्रोफेसर सेलेक्ट करके प्रायर टू द एडमिशन से पहले उस प्रोफेसर से कांटेक्ट करना होता है। ठीक है, उनसे डिस्कशन करनी होती है। फिर आपने सुना हो एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, वो फिर एक्सेप्टेंस देते हैं प्रोफेसर जो है कि ठीक है जी मैं इस स्टूडेंट को इन फ्यूचर अपने साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। तो यही एक्सेप्टेंस लेटर जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वहाँ पे वो एक्सेप्टेंस लेटर का उन्होंने ऑप्शन गिवन दिया होता है कि यहाँ पे जिस प्रोफेसर से आपकी बात हुई है, जिन्होंने आपको एक्सेप्ट किया है, उनका लेटर यहाँ पे जो है वो आप पेस्ट करें।
सॉरी, वी विल स्टॉप फॉर अ व्हाइल, अजान हो रही है, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा. Okay, we are back to the work now. So, उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी एडमिशन्स की डिटेल्स पढ़नी है, आपने स्कॉलरशिप की डिटेल्स पढ़नी है कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए. उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम गूगल पे जाते हैं, हम सर्च करते हैं चीज़ों को और बस चीज़ें देखी और थोड़ी देर बाद जो है वो टैब हम क्लोज कर देते हैं. काइंडली इस तरह नहीं करना. जब आपको पता चल जाए कि मैंने एक यूनिवर्सिटी ओपन की हुई है, उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप एक प्रिपेयर टू डू लिस्ट, आप अपने पास एक लिस्ट बनाएं एक पेज पे, नॉट ऑन लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स. उस पेज पे लिखें जी अच्छा ये कहते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका ये नाम है, इनको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इनको ये डॉक्यूमेंट चाहिए और यहाँ पे ये प्रोसीजर करना है. तो जब वो चीज़ आपके पास होगी इंटेंजिबल फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, किसी भी टाइम आप उस चीज़ को देख सकते हैं और उस चीज़ को प्रोसीड कर सकते हैं. बाज़ औक़ात हम मोबाइल में लैपटॉप में चीज़ें रख तो लेते हैं, लेकिन जब उनको देखने लगते हैं तो साथ में जो है कोई और डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, फ़ोन कॉल एक्सेट्रा, मैसेजेस. सो काइंडली इसको पेज पे आप लिखा करें, अपने पास रखा करें, अच्छा मैंने ये करना है ये. और अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर प्रोफेसर. वहाँ पे प्रोफेसर्स की डिटेल दी होती हैं, ईमेल एड्रेसेस वगैरह गिवन होते हैं, उसे कांटेक्ट करना है. कांटेक्ट में क्या करना है कि जी मैं ये स्टूडेंट हूँ, मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड ये है, मैं आगे इस तरह की स्टडी करना चाहता हूँ, जो आपका रिसर्च फील्ड है वो मुझे इंटरेस्टेड लगा. तो इस तरह की फॉर्मल चीज़ें जो हैं वो उसमें आपको मेंशन करके उनको सेंड करनी होती हैं. तो उसके बाद उनके रिस्पॉन्स आते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखेंगे. फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स. Make sure that you have all required documents by the target school. आप currently जिस स्कूल में आप हैं, यूनिवर्सिटी में आप हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्रीज हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं. याद रखें कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जब आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं अप टू योर डिग्री. ठीक है, ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. तो पहले कोशिश करें कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएं ताकि फिर आप उस चीज़ को प्रोसीड करें. अगर कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं तो अपने इंस्टीट्यूट को कहें कि आपको अर्जेंट बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इशू किए जाएं. उसके बाद अटेस्टेशन है, प्रिपरेशन है, डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन होती है. की कौन सी टाइप्स होती हैं वो भी हम क्विकली नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमें पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाना पड़ेंगे फॉरेन कंट्री के लिए. ठीक है, अगेन डबल चेक दैम कि जिस यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर रहे हैं कि उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक सारी चीज़ें मेरे पास हैं या नहीं हैं. बाज़ हमारी स्कॉलरशिप की रिजेक्शन हमारे टैलेंट की वजह से नहीं लगती, उसमें हमारी जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन होती है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट होता है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं. तो हम ये समझते हैं कि शायद हमारा टैलेंट उनको जो है वो सही पसंद नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं होता. सो द नेक्स्ट थिंग इज फाइनली, जब ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी then you have to submit your documents. गवर्निंग अथॉरिटी में जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उनको वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है, बाज़ बात एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग करना पड़ता है. फिर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आपको फ़ी भी पे करना पड़ती है. और फिर उसके बाद विद इन फ्यू वीक्स और विद इन मंथ्स आपके लॉगिन के ऊपर आपका रिजल्ट आ जाता है कि जी यू हैव बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड और नॉट.
सो दीज वर द बेसिक। और एक चीज़ जहन में रखें कि ये किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हैं ये चीज़ें। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी स्कॉलरशिप देखेंगे उसका जो मेन चीज़ें होंगी, जो बेसिक चीज़ें होंगी, वो यही हैं जो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स भी और प्रोसीजर्स भी। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं मैं उनको नाम देता हूँ डायरेक्टली एकेडमिक, इनडायरेक्टली एकेडमिक और तीसरे हैं अदर डॉक्यूमेंट्स। डायरेक्टली कौन से, जो आपके ग्रेड्स और डिग्रीज होती हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके लेटर्स हैं, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर्स हैं। और अदर डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं जिसमें आपका आ जाता है जी पासपोर्ट है, आपका नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एग्जामिनेशन हेल्थ है, वो सारी चीज़ें, हेल्थ एग्जामिनेशन सॉरी, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखें कि जी वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स, मेट्रिकुलेशन से लेके आपकी जो रिसेंट डिग्री है वहां तक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट आपका डिग्री होता है, दूसरा डॉक्यूमेंट आपका ट्रांसक्रिप्ट होती है या जिसको हम डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट भी कहते हैं। उसके बाद आपने ये स्कॉलरशिप या फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस के लिए बता रहा हूँ कि जर्नली हमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। रिकमेंडेशन लेटर ये होता है कि जिससे आप पढ़े हुए हैं वहाँ के आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं कि उसमें ये मेंशन करते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट रहा है, he has been, she has been very good student, so I personally recommend him her for the higher studies। तो वो रिकमेंड करते हैं। तो ये नॉर्मली 2 लेटर रिक्वायर्ड होते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्स रिक्वायर्ड करती हैं, कुछ नहीं करती। जो नहीं करती मोस्टली वो कहती हैं कि हमें अपनी से एक लेटर जो है वो आप सेंड करें जिसमें ये मेंशन करे आपकी यूनिवर्सिटी कि हमने जितना भी इस बच्चे को पढ़ाया है, इसके जो एग्जाम्स लिए हैं लैंग्वेज इंग्लिश थी। तो इसको कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। मे बी हर यूनिवर्सिटीज़ में इसका डिफरेंट नाम हो, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका यही है। नेक्स्ट जो चीज़ है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ मोटिवेशन। इसका मतलब ये होता है कि यू हैव टू स्टेट योरसेल्फ ऑन वन पेज कि आप ये एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं, आप इसी ही यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया, आपने किन चीज़ों ने आपको मोटिवेट किया इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। तो ये एक पेज का होता है, इसमें आपने चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस यूनिवर्सिटी को इसलिए सिलेक्ट किया कि इसकी जो रिसर्च स्कोरिंग है वो बहुत अच्छी है। दूसरा आप ये मेंशन करेंगे कि जिस रिसर्च में मैं इंटरेस्टेड हूँ वो मैंने इस यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल में काफ़ी देखी है। इस तरह की चीज़ें, फैक्ट बेस्ड चीज़ें आपने उसमें प्रेजेंट करनी होती हैं। उसके बाद आपकी एकेडमिक रेज्यूमे है, इसमें आपने एकेडमिक मीन कि आपने एकेडमिकली चीज़ें याद रखें। ट्राई टू हैव योर, जिसको हम सीवी बोलते हैं, 1.5 पेजेस सॉरी 1.5 पेजेस इनफ, ठीक है सीवी के अंदर। उसमें आपने स्पेशली इस चीज़ का ध्यान, आपने कोई एकेडमिक अवार्ड्स लिए हैं, कोई पोजीशंस आपने रिटेन की हैं, या आपका अगर कोई एकेडमिक एक्सपीरियंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव बीन अ टीचर असिस्टेंट, आपने टीचिंग की एज असिस्टेंट की, या आपने वैसे एज अ प्रोफेशनल जॉब की, उसको ज़रूर मेंशन करें। फिर आपने एक और डॉक्यूमेंट बनाना होता है स्टडी प्लान। इसका मतलब ये है कि मैं फॉरेन कंट्री में जाके, फॉर एग्जांपल यूके ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में जाके अपनी स्टडीज़ को कैसे कंटिन्यू रखूँ। मैं पहले साल में क्या करूँगा, मैं पहले साल में कोर्सेज पढ़ूंगा, दूसरे साल में मैं क्या करूँगा, मैं अपनी रिसर्च पे फोकस करूँगा। इस तरह करके आपने अपना प्लान, ये टेंटेटिव प्लान होता है, लाजमी नहीं कि ये चीज़ें ऐसी ही हों, वहाँ पे जाके चेंज होती रहती हैं, लेकिन आपने अपने तौर पे इसमें एक्सप्रेस करना होता है कि जी मैं कैसे वहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ जाके। रिसर्च प्रपोजल, दिस इज मोस्टली रिक्वायर्ड फॉर द पीएचडी स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि मैं अपनी पीएचडी के अंदर ये वाली रिसर्च करना चाहता हूँ, ये क्या होती है, ये मैं क्यों करना चाहता हूँ, ये मैं कैसे कंटिन्यू करूँगा। और पीएचडी स्टूडेंट्स का एडमिशन अलॉन्ग विद स्कॉलरशिप ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उनकी इस रिसर्च प्लान प्रपोजल पे कि इट शुड बी इनोवेटिव, ठीक है, बिल्कुल नई चीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका कोई डायरेक्टली आपकी एकेडेमिया से ताल्लुक नहीं होता, आइडेंटिटी जिसको हम पासपोर्ट के, उसके बाद आपका क्रिमिनल का जो रिकॉर्ड है वो हो गया,
उसके अलावा कोई फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें आप, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। ये ऑलमोस्ट हर के लिए, कोई भी स्कॉलरशिप है वर्ल्ड वाइड, उसके लिए इंटरनेशनल, उसके लिए यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मोर देन, इसमें एक आधा डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन मेन और इम्पोर्टेंट जो थे वो यही होते हैं। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे भी पूछते हैं जी सर एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए कौन सी चीज़ मैटर करती है? मेरा देखें GPA 3.5 है, मेरा 3.1 है, मेरा 4, मेरा एडमिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे हम देखते हैं जी व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर द एक्सेप्टेंस। ये इम्पोर्टेंस में लाइक चार्ट, इसमें आप इस तरह समझें कि जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उसका उतना लेवल यहाँ पे शो किया गया है। याद रखें, जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो आपका इंटरव्यू होता है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव बीन इन इंटरव्यूज फॉर 3 टाइम्स। HEC स्कॉलरशिप का इंटरव्यू मैंने दिया और 2 दफ़ा मैंने जो स्कॉलरशिप काउंसिल है फॉरेन की, वहाँ पे इंटरव्यू मैंने दिया। तो मैंने जो पर्सनली फील किया वो ये होता है, इंटरव्यू इज जस्ट लाइक अ बैकबोन। क्यों? आप डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका 4/4 GPA भी है, तो वो रिजल्ट कार्ड देख के मैं आपका कॉन्फिडेंस, मैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका नॉलेज, जो आपका वो एबिलिटी है, मैं उसको जज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इंटरव्यू में यही चीज़ें जज की जाती हैं। और याद रखें, इंटरव्यू में 2 तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। एक जनरल इंटरव्यू होता है आपके बारे में, आपकी एबिलिटीज़ के बारे में। एक इंटरव्यू होता है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में, कि जी आपने एकेडमी, अच्छा आप पीछे रिजल्ट ये है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट था, उसके क्या मतलब के क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में। दूसरे नंबर पे ऑफ कोर्स द इम्पोर्टेंट वन इज योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स, कि जी उसमें आपकी पीछे GPA कितने हैं, उसमें आपकी परसेंटेजेस कितने हैं, उसमें आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे अकॉर्डिंग टू मी। एक और चीज़ जो हम समटाइम हमारे माइंड में नहीं आती, या जो समटाइम नहीं बोली जाती, बताई जाती, वो है कि आपने प्रीवियसली अपनी डिग्री कहाँ से की है। आई रिमेंबर कि एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया से एक प्रोफेसर आए हमें लेक्चर देने। तो लेक्चर के बाद मैंने उनसे वैसे ही एग्जिट गेट की तरफ जा रहे थे, तो मैंने उनसे बातचीत वैसे ही शुरू की। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि जब आप स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं? एकेडमिक रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली दिस इज इम्पोर्टेंट वन। तो वहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली इस चीज़ पे बड़ा जोर दिया कि वो कहते हैं कि जी हम ये चीज़ देखते हैं कि प्रीवियस इंस्टीट्यूशन इस स्टूडेंट का कौन सा है अपने कंट्री के अंदर, हम उसकी रैंकिंग वगैरह और ये चीज़ें देखते हैं। तो ठीक है, तो ये भी माइंड में रखें कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है उसको भी देखा जाता है। और लीस्ट आपकी कोई अदर अचीवमेंट्स हैं, आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंसेस लाइक आई हैव मेंशन ऑलरेडी बीइंग अ टीचर असिस्टेंट, आपने कोई टीचिंग की हो, या आप जो रिसर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टडी अबाउट द FRPs, और अगर आपने FRP के बारे में किसी का काम किया हुआ है, सो इट इज गोना बी अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर योर स्कॉलरशिप। सो इस स्लाइड का मतलब ये है, GPA इज नॉट इनफ। ठीक है, GPA सिर्फ मैटर नहीं करता, और अगर आपका GPA कम भी है, सो प्लीज डू नॉट वरी। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी मेरा 3.2 है, मैं तो नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है, एवरीवन कैन अप्लाई, यू कैन ट्राई। ठीक है, और इसमें ढेर सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। हो सकता है आपके एकेडमिक रैंक्स में भी इतने अच्छे ना हों, लेकिन आपने इंटरव्यू इतना अच्छा प्रेजेंट किया हो और उसमें आपने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ चीज़ें एक्सप्लेन की हों, तो वो आपको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, कोई एक चीज़ मैटर नहीं करती। नेक्स्ट, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी आता है जी रैंकिंग क्या होती है, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग देखते कैसे हैं, और ये क्या चीज़ होती है, और ये रैंकिंग मैटर भी करती है कि नहीं करती। रैंकिंग 2 तरह की होती हैं, एक ग्लोबल रैंकिंग होती है, एक होती है रैंकिंग बाय सब्जेक्ट। ग्लोबल रैंकिंग कहते हैं जी ओवरऑल हमारा इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड उसकी रैंकिंग क्या है, उसके अंदर वो रिसर्च आउटपुट उसकी काउंट होती हैं, फैकल्टी किस तरह की रखी हुई, कितने रखी हुई हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, उसमें इंटरनेशनल्स कितने हैं। एक होती है सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये देखना है कि NTU पॉलीमर में कितनी अच्छी है, तो इसको हम कहेंगे रैंकिंग बाय सब्जेक्ट। और याद रखें, लाजमी नहीं कि जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट में अच्छी हो वो ग्लोबल में भी अच्छी हो।
या जो ग्लोबल में अच्छी है वो सब्जेक्ट में अच्छी हो। इस बात का मकसद क्या है, मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि NTU पॉलीमर में बहुत अच्छी है, लेकिन मे बी कंप्यूटर साइंस शायद थोड़ी सी कम अच्छी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि NTU की बाय सब्जेक्ट पॉलीमर जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, गोल की बात होती है तो वो कंप्यूटर भी देखा जाएगी, कंप्यूटर साइंसेस भी, उसमें पॉलीमर भी देखी जाएगी, उसमें लैब भी देखा जाएगा, सारे डिपार्टमेंट्स देखे जाएंगे। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स ये मोस्ट रिलायबल सोर्स कौन सा है, हम कैसे मान जाएं कि हमें किसी यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग बताई जा रही है वो बिल्कुल ठीक है। रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ढेर सारी हैं दुनिया में, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट रिलायबल है वो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की, किसी भी कॉलेज की, चाहे वो पाकिस्तान की है चाहे किसी कंट्री की है, आप इस सोर्स से जाके देख सकते हैं। ये मोस्ट रिलायबल सोर्स जो है वो काउंट किया जाता है। और दूसरा ये कि रैंकिंग मैटर करती है कि नहीं करती। याद रखें, रैंकिंग मैटर करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी रैंकिंग से ज़्यादा ये आपकी लर्निंग वहाँ पे कैसी हो रही है। ठीक है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हो लेकिन वहाँ पे लर्निंग आपकी उस सेंस में ना हो रही हो, तो रैंकिंग जो है वो आपके लिए शायद उतना फ़ायदेमंद नहीं होगी। ठीक है, रैंकिंग भी मैटर करती है, लेकिन नो डाउट दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ है कि जो यूनिवर्सिटी अच्छी होगी डेफिनेटली वो आपकी लर्निंग भी वहाँ पे अच्छी होगी। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन, थोड़ा सा इसका आपको क्विकली बता दूं। डॉक्यूमेंट अटेस्ट जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जो करवाने होते हैं, आप इन पर्सन भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन में करवाना पड़ेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवाना पड़ेंगे, HEC से करवाना पड़ेंगे, उनकी नोटराइजेशन करवाना पड़ेगी। जब आप इस प्रोसेस में आएंगे तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलती जाएंगी। गूगल पे भी इन चीज़ों का डिटेल प्रोसेस दिए होते हैं। फिर आप ऑनलाइन घर बैठे जो है इन चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं, लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, और ये चीज़ें घर बैठे भी आप टेस्ट करवा सकते हैं। और अब तो ये है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स कितने टेस्ट हो गए हैं, उनके कितने डिले है, कितना टाइम है। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। इस अटेस्टेशन के बगैर फॉरेन में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते। So, overall guidance variable suggestions according to my experience, कोई स्टूडेंट पूछते हैं आप हमें कोई बता दें, कोई सजेशन दे दें, हम क्या करें, कैसे करें। पहली चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, बी अटेंटिव। आप देखें जी स्कॉलरशिप है, उनकी इंफॉर्मेशन है। आजकल तो हर पर्सन सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है। बाकी चीज़ों के साथ साथ आप इन चीज़ों को भी देखते रहा करें कि स्कॉलरशिप्स हैं नहीं, मुझे कौन सी सूट करती है, कौन सा इंस्टीट्यूट मेरे लिए ठीक रहेगा। दूसरी बात, राइट एंड स्पीक वेरी ऑनेस्टली। अपनी सीवीज के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर प्लीज ट्राई कि उसके अंदर आप कोई गलत बात ना करें। I mean, उसके अंदर कोई ऐसी बात ना करें जो आप डिजर्व नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अक्सर सीवीज के अंदर लिखा होता है, मैं मिसाल देता हूँ आपको कि जी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सेल का बहुत एक्सपर्ट हूँ। ये आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स शायद उस चीज़ को नहीं कर पाते, लेकिन स्टिल उन्होंने मेंशन की होती है। ठीक है, इंटरव्यू के दौरान आपकी सीवी में मेंशन की गई चीज़ों में से कोई भी क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये मुझे इतनी तो नहीं आती लेकिन थोड़ी सी आती है। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ को उसमें माइंड में रख। जब मैं बैचलर में था तो हमारे जब वाइवाज होते थे, आप लोगों के भी होते होंगे, तो जब मेरे से कोई सर क्वेश्चन पूछते थे, मैडम क्वेश्चन करती थी, अगर मुझे नहीं आता होता था तो मैं उनको ये नहीं कहता था मैम एक मिनट प्लीज़ लेट मी थिंक एंड दिस एंड दैट। मैं उनको कहता था कि सॉरी मैम, सॉरी सर, मुझे ये नहीं आता। तो अपना इंप्रेशन अच्छा रखें इंटरव्यूअर के ऊपर, ताकि वो ये ना गैस करे कि यार ये मुझे थोड़ी सी बात सही नहीं बता रहे या बात छुपा रहे हैं। सो प्लीज ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई भी चीज़ ऐसी मत बोलें, कोई ऐसी मत लिखें जो फुली डिजर्व नहीं कर सकते। अब मैं जब इंटरव्यू दे रहा था HEC का, तो मेरे से भी उन्होंने बड़ा टफ क्वेश्चन एक पूछा, तो मुझे उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता था, लेकिन मुझे 50% आइडिया था उसका, लेकिन मैंने स्टिल उनको सॉरी कर दिया था कि सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ,
ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन थे, आई आंसर्ड देम एंड आई वाज फाइनली सिलेक्टेड आल्सो। तो बात ये है, बी ऑनेस्ट प्लीज। दूसरी है कीप बैलेंस एंड कीप मूविंग। बाज़ औक़ात ये होता है, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, जब आप कंट्री सेलेक्ट करें, तो प्लीज़ ये भी माइंड में रखें, ये बड़ी एक क्रिटिकल बात है लेकिन आपसे शेयर करना बनती भी है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। ये माइंड में रखें कि हम अगर बहुत हाई क्लास यूनिवर्सिटी स्पेशली कंट्री में अप्लाई करेंगे तो मे बी रीजन की वजह से हमारे चांसेस कम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप होप छोड़ दें, आप उम्मीद छोड़ दें, आप डिसअपॉइंट हो जाएं, ऐसी बात नहीं है। एक यूनिवर्सिटी में नहीं होता, पर ट्राई ना करें, उसको छोड़ दें, आप नेक्स्ट में मूव करें, बट डू नॉट स्टॉप प्लीज, कीप मूविंग। मूविंग मीन आप अप्लाई करते रहें। डिसअपॉइंट हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। दिस इज अवॉइड स्कैम्स। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि एडमिशन तो नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स इन चीज़ों का शिकार होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, मिस इन्फॉर्मेशंस बहुत होती हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में काइंडली उसको क्रॉस चेक किया करें। मैं भी जो बातें कर रहा हूँ आप इनको क्रॉस चेक करें आफ्टर द प्रेजेंटेशन, गूगल के ऊपर जाके या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर जाके, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी टू मेंशन अबाउट द थर्ड बॉडीज, जिनको हम लोग एजेंट्स बोलते हैं। प्लीज मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ उनके पास ना जाया करें। आप ये सारा काम खुद कर सकते हैं और किया करें, ठीक है। मैंने अपने सारे दोनों स्कॉलरशिप, मेरा मलेशिया में एडमिशन हुआ था, वो अलग बात है, वो मुझे यूनिवर्सिटी बाद में अच्छी नहीं लगी, मैं वहाँ पे नहीं गया। जितनी भी फिर स्कॉलरशिप 2 विन की बात करने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें मैंने खुद की हैं और आप कर सकते हैं और आप करते हैं, ठीक है। तो एजेंट्स क्या करते हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हैं, जो अटेस्टेशन करवानी है, आपने वो डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किए, वो कहते हैं जी बस आप हमें पैसे दें, हम आपकी ये चीज़ें खुद कर देते हैं और आपको एडमिशन भी दिलवा देंगे। एजेंट्स बॉडीज जो हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि ये आपका हाई रैंक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवा दें। ये हमेशा उसमें एडमिशन करवाते हैं जो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग में थोड़े कम होते हैं। इवन इन द मोस्ट केसेस इफ यू टॉक अबाउट चाइना के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो ब्लैक लिस्ट हैं, ठीक है, बहुत नीचे लेवल की हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को चूंकि पता नहीं होता, वो एजेंट्स के पास जाते हैं, वो उनसे पैसे लेते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और उनको उसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करवा देते हैं, जिनकी बाद में आके यहाँ पे वैल्यू नहीं होती। सो प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हेल्प किसी से ना लें, बिल्कुल हेल्प लें, लेकिन क्रॉस चेक किया करें चीज़ों को। मैं भी जो बातें आपको बता रहा हूँ आप इनको भी क्रॉस चेक करें, ठीक है। सो ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। आपको हेल्प चाहिए, आप ज़रूर हेल्प लें, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में सीनियर्स होंगे, आप उनसे हेल्प लें। मेरे से अगर कोई हेल्प आपको चाहिए, आप अपने प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करें, ठीक है, उन्हें कहें जी हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको वो चीज़ें विद रेफरेंस आपको बता दूंगा। सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। And finally, keep in your mind, good things take time and effort. ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें आपको पेशेंस शो करना पड़ती है और चीज़ों का वेट करना पड़ता है और ढेर सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। इसमें आपने डू नॉट रश योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप को जल्दबाजी में ना डालें, डिसअपॉइंट ना हो। गुड थिंग्स टेक टाइम, रिमेंबर एवरी टाइम, ठीक है। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। मुझे याद पड़ता है, मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा जी मैंने एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है, मैंने प्रोफेसर से बात की है, लेकिन मुझे वो रिस्पांस नहीं कर रहे, मैं क्या। मैंने उस यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी का गूगल पे जाके जब उनकी डेडलाइंस देखी, तो उनकी डेडलाइन ख़त्म होने में आने में 2 महीने भी रहे। अब उन 2 महीनों में प्रोफेसर इसलिए रिप्लाई नहीं करते कि देखें और भी तो ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो उनके पास अप्लाई करेंगे डेडलाइन तक, तो फाइनली वो फिर उनको जज करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे जी किसको सिलेक्ट करना है। तो हर चीज़ को माइंड में रखा करें, हर चीज़ को क्रॉस चेक किया करें। इंफॉर्मेशंस गिवन होती हैं, फिर सिर्फ हम वो चीज़ें करना नहीं चाहते, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। मेरे से बहुत ज़्यादा आप लोग टैलेंटेड भी हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा आप लोग I can do this, you can must do this, आप भी कर सकते हैं, लेकिन but you have to take a start, ठीक है जी। ओके, अब ये है कि सर हम चलें, ठीक है जी, हमने इरादा कर लिया कि आज से हम करेंगे, तो सर कैसे करें।
सबसे पहले आपने क्या करना है, मेक अ प्लान। आप अपने माइंड में सोचें जी मैंने ये मास्टर करना है और मैंने बस अब इसके लिए जो है वो मैं मेंटली रेडी हूँ। और फिर आपने यू हैव टू बिगिन इट नाउ, डू नॉट वेट। आप 7th सेमेस्टर में हैं, आप 8th सेमेस्टर में हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट आप चीज़ों को एक्सप्लोर तो कर सकते हैं ना। आप अप्लाई ना करें लेकिन चीज़ों को देखना शुरू कर दें कि जी रैंकिंग कैसे देखते हैं, यूनिवर्सिटी क्या होती हैं, स्कॉलरशिप किसे कहते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या होते हैं। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ एवरी when you use your laptop, when you use your mobile phones, उसके साथ आप सिर्फ 15 मिनट्स, स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 15 मिनट्स, आप 15 मिनट निकाल लें रोज़ाना। उन 15 मिनट्स में आपने क्या करना है, सिर्फ यही देखना है कि यूनिवर्सिटी पॉलीमर की अच्छी कौन सी हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, चीज़ों को देखेंगे। जस्ट 15 मिनट्स, आप इमीडिएटली आफ्टर 15 मिनट्स क्लोज योर टैब। ठीक है, तो टाइम थोड़ा निकालेंगे तब परेशान होने से कुछ नहीं होगा। मेकिंग मिस्टेक इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट टेकिंग अ स्टेप इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, और वैसे भी होली कुरान की वर्स है, ईज कम्स विद हार्डशिप। हार्ड चीज़ें, ये सारी चीज़ें प्रोसेस करेंगे तो फिर ही उसके बाद जो है वो आसानी आएगी। So here the section 1 of this presentation is over from my side. Thanks a million for sitting through that. Before we move further, our second session that is just about questions if you have in your mind, हम एक क्विक रिव्यू करेंगे कि हमने अभी पहले सेक्शन में हमने क्या किया विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया है तो वो भी देख लेंगे कि हमने पहले सेक्शन में जो है वो क्या क्या चीज़ें की हैं। सो वी विल क्विकली रिव्यू दिस एंड आफ्टर दैट वी विल क्विकली second session where I will take your questions and I will answer them. अभी 10-15 मिनट में ना फिर क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ ये शो हो रही थी कि स्लाइड्स नेक्स्ट चल रही हैं? प्लीज ऑडियंस, क्योंकि मैंने स्लाइड्स शो नहीं हो रही। स्लाइड्स शो नहीं हो रही। एक्चुअली मैंने रन की थी स्लाइड्स, लेकिन आई थिंक कोई प्रॉब्लम हुआ है। दोबारा मैं देखता हूँ, काइंडली मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो फिर हम सेकंड सेक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन आंसर सर कर लेते हैं मेरे ख्याल से। चलें ठीक है, हम उसकी तरफ क्विकली मूव करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। यहाँ पे कुछ लिंक्स भी मैंने मेंशन कर दिए। विल ओपन माइक फॉर रहीम। स्लाइड ये इंग्लिश होल्ड दोबारा क्रॉस कर ले। मोशन बारी बारी सबके माइक ऑन करते जाओ जो है रेज हैंड करते। You can ask the questions one by one. सबके पास एक्सेस है, कोई जो पूछना चाहता है अनम्यूट करके पूछ सकता है। Assalamu alaikum, sir. Sir, my name is Salman Rashid. Sir, my name is Salman Rashid from Polymer Department. I want to ask about language proficiency. Sorry to say, due to a connectivity issue, I didn't listen. So please, sir, explain again if you don't mind. No problem at all. Language proficiency is all about the language which you have used in your studies. ठीक है, डेफिनेटली आपका जो बैचलर है उसकी जो टीचिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है आपकी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, वो जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी आपको देगी। उसमें वो ये मेंशन करते हैं कि हमने जितना भी पढ़ाया है या एग्ज़ाम्स लिए हैं
वो सारे इंग्लिश में थे. So that's called English proficiency letter. You got your answer? यस सर. सर एक और क्वेश्चन था कि सर Yeah, अब हम sure. सर हम सेकंड सेमेस्टर में सॉरी थर्ड सेमेस्टर में सेकंड ईयर में, तो सर हम कैसे इनिशिएटिव ले सकते हैं इसके बारे में? बिल्कुल देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि ये लाजमी नहीं है कि आप डिग्री कंप्लीट हो तो फिर ही आप इनिशिएटिव. सबसे पहले आपने क्या करना है, बिल्कुल बेसिक स्टेप. आप गूगल पे जाएं, आप ये देखें पॉलीमर में कर रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले देखें जी पॉलीमर की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं. ठीक है, उस यूनिवर्सिटीज़ में फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको गूगल पे शो करूं तो ये देखें, ये अगर मैंने लिखा ना QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, ये QS जो है ये रैंक करता है यूनिवर्सिटीज़ को. ये मैंने लिखा तो यहाँ पे आ जाएंगी. ये देखें इसको, ये आपको शो हो रहा है वेब पेज? नो सर, वेब पेज नो सर. आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद माइक्रोसॉफ्ट. चलें खैर, तो वहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करें. ठीक है, ये पॉलीमर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं. फॉर एग्जांपल वो पहले जी, हेलो, कैन यू लिसन मी? कंटिन्यू. जी सर, आपकी आवाज आ हाँ रही जी है. सर. प्लीज कंटिन्यू सर. जी, तो आप जाएंगे वहाँ पे, आप पहले यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करें. ठीक है, फिर उस यूनिवर्सिटी, जब फॉर एग्जांपल आप उसमें से 5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें, कोई भी रैंडमली. ठीक है, जो अच्छी रैंक्स की हैं, रैंकिंग की हैं, उनको सेलेक्ट कर लें. नेक्स्ट क्या करना है, आपने उस यूनिवर्सिटी को ओपन करना है. आपने फॉर एग्जांपल अब वेब पेज आपको शो नहीं हो रहा, नहीं तो मैं आपको साथ साथ गूगल पे करके दिखाता कि ये कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल हम कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं. मैंने तो एक्सक्यूज मी सर. आई एम नॉट श्योर कि आप इसको देख सकते हैं या नहीं. इस यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी को ओपन करेंगे तो उसमें ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उसकी एडमिशन्स के बारे में, उसके डिपार्टमेंट्स के बारे में. ठीक है, आप सबसे पहले डिपार्टमेंट ओपन करें उनका. ठीक है, Excuse me, अगर sir. उसमें पॉलीमर आप डिपार्टमेंट ओपन करें, उसको ये क्या क्या पढ़ाते हैं और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, फिर उसका एडमिशन जो है पोर्टल जो है उस पर आ जाएं जी. इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, वो वही होंगी जर्नली जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, लेकिन आप अपने तौर पे देखें. सबसे पहले इनिशिएटिव कैसे लेना है, यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है पॉलीमार की कौन कौन सी हैं. ठीक है, आप इंटरनेशनली नहीं तो पाकिस्तान से शुरू कर लें कि पाकिस्तान में पॉलीमार की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी कौन कौन सी हैं. फिर उस यूनिवर्सिटी को 1 बाय 1 ओपन करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ें कि यहाँ पे एडमिशन लेने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे, फिर उसमें हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्स भी मांगे. हाँ, एक और आपको यहाँ पे थोड़ी सी एडवाइस भी कर दूँ, आपने एडमिशन लेना है या नहीं लेना, या जिस कंट्री में भी जाना है, ये मेरी एक पर्सनली आपको सजेशन भी है और एडवाइस भी है. प्लीज़ आइल्स आप अभी से स्टार्ट कर दें. इसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स होती है, लेकिन आइल्स आप अभी से स्टार्ट करें. ढेर सारे एडमिशन्स और अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उसको देख के इसलिए क्लोज कर देते हैं कि वहाँ पे उन्होंने आइल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, लाजमी नहीं कि आप 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद उसका एग्ज़ाम दें. आप आहिस्ता आहिस्ता आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. ठीक है, आइल्स अपने पास रखें. जितनी भी हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आइल्स रिक्वायर्ड करती हैं. ठीक है, और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं. और ऐसी एक और थोड़ा सा आपको, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो ठीक है, वो पाकिस्तान से तो बेहतर है ना. ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान की अपनी यूनिवर्सिटीज़ बहुत बेहतर हैं. ठीक है, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी उसमें टेक्सटाइल में बहुत अच्छी है. ठीक है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छी सिलेक्शन करनी है, और अपने जो डॉक्यूमेंट बेसिक हैं वो साथ साथ रेडी हो सकते हैं, उनको साथ साथ रेडी रखें अपने. ठीक है जी. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर. नो प्रॉब्लम. Another question, please. Sir, I have a question regarding IELTS. Sure. सर, मैंने पूछना था कि अगर हम यूके के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कोई और टाइप का IELTS चाहिए होता है? नहीं, देखें आइल्स जो है ना वो एक ही चीज़ है. जर्मनी में जाते तो आपकी उसकी आवाज़ पूछना.
जी जी आपकी जी आवाज सर, फ्लक्चुएट आई कर रही कैन थी, काइंडली आप क्वेश्चन दोबारा पूछें। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आर्ट्स, आई थिंक जहाँ तक मेरा था आइडिया मुझे था, उसमें ये था कि आर्ट्स 2 या 3 टाइप्स का होता है कि अगर आप यूके के लिए करना चाह रहे हैं तो वो शायद आई थिंक कैम्ब्रिज वाले लेते हैं। अगर आप किसी और कंट्री के लिए जाना चाह रहे हैं तो वो उनका पर्सपेक्टिव जो भी उनका यानी कि रिलेटिव होगा वो उसके थ्रू हम देखते हैं। सर इज इट राइट और रॉन्ग? नहीं ऐसी बात नहीं ऐसी बात नहीं है। बेसिकली जो आइल्स के एग्जाम्स लेते हैं वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रिटिश काउंसिल है और एक AEIO के नाम से है जो ऑस्ट्रेलिया रन करता है। आप एग्ज़ाम किसी की तरफ से भी दे सकते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसीज सेम है, उनका जो असेसमेंट क्राइटेरिया है आपका एग्ज़ाम लेने का वो सेम है। लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्रिटिश काउंसिल को जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम उनकी तरफ से टेस्ट देंगे। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने यूके जाना है तो मस्ट ब्रिटिश काउंसिल, क्योंकि जब तक मैं इन चीज़ों में था आइल्स वगैरह में तब तक तो ये रूल नहीं था, शायद अभी भी नहीं होगा, लेकिन स्टिल आप इसको गूगल से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है, क्योंकि जब हम कर रहे थे तो तब इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि यूके जाना है तो ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एग्जाम दें, अगर कहीं और जाना है तो आप ब्रिटिश से ना दें, ऐसी बात नहीं है। आइल्स इज आइल्स, उन दोनों का क्राइटेरिया सेम है असेसमेंट का, एग्जाम्स पैटर्न का। और लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में लोग ब्रिटिश काउंसिल को ही प्रेफर करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर असिस्टेंस। सर अस्सलाम वालेकुम। नो प्रॉब्लम। वालेकुम सलाम जी। सर Yes, फर्स्ट ऑफ ऑल तो please. थैंक यू सर। आप सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। सर मतलब हम जब मतलब खासतौर पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मैं जब अप्लाई किया था ना, मैंने किसी मतलब बाहर सर्च आउट वगैरह कर रहा था, तो सर मुझे ना यूरोप में मतलब कि फ्रांस वगैरह या मतलब किसी और कंट्री में ना सर इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब कोर्स नहीं मिलते, बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं अब यूनिवर्सिटी है फ्रांस की, एक स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी है, उसमें काफी अरसे से ना फ्रांस की है कुछ और मतलब चेक रिपब्लिक वगैरह, और मतलब इस तरह की कंट्रीज वगैरह में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें मतलब मेरी काफी अरसे से थोड़ी सी नजर है, एक साल पिछले मैं 6 महीने से मॉनिटर कर रहा हूँ, लेकिन ना वहाँ पे कोर्स नहीं मिलता सर इंग्लिश लैंग्वेज में, और किसी में मिलता है तो वो फिर जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी बिल्कुल मांगते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज की बिल्कुल मैं प्रोफिशिएंसी आपकी मांगते हैं। बिल्कुल मैं आपका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर गया हूँ। पर्सनली जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो ये है कि यूनिवर्सिटी किसी भी कंट्री की हो, अगर तो वो हाई रैंक यूनिवर्सिटी है ना, तो 90% चांसेस हैं कि उनकी स्टडी जो है वो दोनों इंग्लिश में भी होगी और उनकी जो अपनी लोकल लैंग्वेज है उनमें भी होगी। ठीक है, अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि यूनिवर्सिटी अगर इंग्लिश में आपको स्टडी नहीं करवा रही तो आई थिंक यू शुड चूज अनदर वन। ठीक है, नो डाउट वो यूनिवर्सिटी अच्छी भी होगी, आप फ्रेंच सीख भी लेंगे, लेकिन उन चीज़ों में टाइम लगाने के बजाय आप उस यूनिवर्सिटी में, अब मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जिस यूनिवर्सिटी में मैं होता हूँ, लेट मी शो यू। अब देखा जाए तो ये यूनिवर्सिटी बेजिंग के अंदर है, ठीक है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, मेरी जो स्कूलिंग है, मेरे जो लेक्चर्स हैं वो सारे इंग्लिश के अंदर हैं। ठीक है, उसके सारे। और सर इस यहाँ क्वेश्चन पे का सेकंड एक पार्ट और, भी आपसे पूछना था। जी सर इस क्वेश्चन का मतलब एक और पार्ट ये है कि सर जैसे आपने बताया कि अगर एक बच्चा सर स्कॉलरशिप अवेल कर जाता है, मतलब वो किसी उस गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हो या फिर एचईसी की स्कॉलरशिप हो, या मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा ठीक हूँ है। कि वो अगली अगली कंट्री की स्कॉलरशिप हो या अपनी कंट्री की स्कॉलरशिप हो, तो सर उसका मतलब अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल के बाद या मतलब कि एक टेन्योर के बाद उसका बिल्कुल फ्यूचर क्या होगा उस स्टूडेंट का? वो ठीक स्टूडेंट हो गया, मतलब कि उस कंट्री को सर्व करेगा, या मतलब कि उसका मतलब कि मेरे पूछने का मकसद ये है कि उसके पास और कौन कौन से रास्ते होंगे उस चीज के ठीक हो बाद? गया। इसमें जो एचईसी स्कॉलरशिप देती है, कुछ स्कॉलरशिप एचईसी की जस्ट लाइक इंडोजीनियस, ये वो स्कॉलरशिप है। एचईसी कहते हैं कि जब आप डिग्री कर लेंगे, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, सो यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू सर्व इन पाकिस्तान। ठीक है, अगर आप उस स्कॉलरशिप से डिग्री करके वापस आएंगे, इसका एक फ़ायदा ये है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होगी।
क्यों? आप गवर्नमेंट की तरफ से गए हुए हैं, गवर्नमेंट ने आपको फंड किया हुआ है, ठीक है। और HEC जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होगी। एक इसका ये फ़ायदा है। दूसरा थोड़ा सा जिसको मैं जो है वो एक नुकसान भी कहता हूँ, क्योंकि मैंने ऑल्दो आई वाज सिलेक्टेड लेकिन मैंने इसको अवेल नहीं किया था। उसकी रीज़न ये थी कि HEC कहते हैं कि आपने 5 साल बाद 4 साल बाद PhD करके आपने वापस आना है, आपने सर्व करना है। व्हाट इफ अगर मुझे वहां पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, या मैं वहां पे पोस्ट डॉक कंटिन्यू करना का सोच लेता हूँ, या मेरी स्कॉलरशिप बढ़ ये जाती है पॉइंट मैं वहां मेक पे, करना चाहता हूँ कि तो मैं वापस नहीं आ सकता ना, ठीक है। तो वो बाउंस हो जाते हैं आप, ठीक है, कि आपने 4 साल बाद वापस आना ही आना है। लेकिन नो डाउट आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अगर आप वहां पे कहते हैं जी मैं वहां पे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं आगे फर्दर स्टडीज भी करना चाहता हूँ, वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिल गई हैं, तो फिर जो है वो आपके लिए इशू होगा, क्योंकि आपको तो वापस आना पड़ेगा। तो मैं इंडिपेंडेंटली जाना चाह रहा था, ये ठीक मैं है यही पूछना चाह रहा था। जी। यू गॉट योर आंसर? कि अभी कोई क्वेश्चन है जी आपके सर, माइंड में? ठीक जी है, सर। ठीक है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर ये यस इसका कोई प्लीज। टाइम फ्रेम होता है कि इसका कोई टाइम फ्रेम होता है कि हमने HEC के साथ कोई एग्रीमेंट या बॉन्ड साइन किया होता है कि हमने इतने साल आके इधर सर्व करना है, अगर हम उनकी स्कॉलरशिप अवेल करते हैं वो लाइफ टाइम होता है कि हम नहीं, लाइफ टाइम लाइफ की टाइम नहीं होता। नहीं नहीं, लाइफ टाइम नहीं होता। 4 to 5 years आई थिंक होता है। रिसेंट पॉलिसी का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उस टाइम ये था कि 4 से 5 साल जो है वो आपका टाइम फ्रेम रहता है, दैट यू हैव टू सर्व हियर। डिग्री कंप्लीशन के बाद आपने यहाँ पे सर्व करना है। तो थोड़ा सा ये होता है कि जो आप इस तरह की स्कॉलरशिप अवेल करते हैं ना, इसका आपके कंट्री के अंदर तो बहुत फ़ायदा होता है आपको वापस आके, लेकिन वो आप थ्रू आउट द स्टडी ड्यूरेशन आप थोड़े से बाउंड रहते हैं अपनी गवर्नमेंट के ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि किसी वक्त भी वो कोई भी इशू ना हो जाए, मुझे वापस जाना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थोड़ी सी मेरे माइंड में ना अनसर्टिनिटी थी, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे इंडिपेंडेंट जो स्कॉलरशिप है मुझे वो मिले, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है, पोस्ट डॉक शुरू करना चाहता हूँ, तो मेरे माइंड में ये ना हो, नो आई हैव टू गो बैक, नो आई हैव टू गो बैक, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप जो है वो आई थिंक बेटर है, लेकिन HEC की स्कॉलरशिप का सर फायदा इसमें आपको ये होगा। जी जी, जी जी। सर एक और क्वेश्चन मैंने पूछना था आपसे। यस यस प्लीज। सर वो मतलब अभी आपने सारी बात बताई हमें, मतलब कि काफी हद तक मुझे बातें सारी समझ आ गई आपकी, लेकिन एक मेन मेन क्वेश्चन है ना मीटिंग का, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर कि मतलब मैंने कुछ देखे हैं काफी सारे लोग ना स्कॉलरशिप्स वगैरह पे गए हैं, एक्सचेंज वगैरह पे गए हैं, कुछ मेरे दोस्त एक दो हैं जो यूग्रेट वगैरह भी मतलब के उनके जानने वाले गए हैं। तो सर मतलब उनकी जो होती है ना, मतलब प्रोफाइल जब आप देखते हैं ना, मतलब काइंड ऑफ जो उनकी सीवीसी होती है, मतलब उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हैं, तो वो सर बड़ा तगड़ा होता है, मतलब कि उनकी CGPA मतलब चौके होते हैं, और CGPA के अलावा भी ऑफ द रिकॉर्ड भी उनके पास काफी सारे जो है ना मतलब सर्टिफिकेट्स वगैरह, सर्टिफिकेशंस, और इनके जो है ना काफी सारे उन्होंने कोर्सेज वगैरह भी किए होते हैं, और बाकी मतलब ना बड़े कैसे कहते हैं ना कि एक ऑप्टिमाइज इंडिविजुअल होता है वो अपनी अपनी अपने ठीक हो गया, सेक्टर का। ठीक हो। तो जी, सर आई मतलब गॉट यू। हम जैसा बंदा, मतलब कि हम जब हम होते हैं मतलब एक एवरेज, मतलब जिसे आप कहते हैं कि अबव द एवरेज वाला बंदा, या मतलब कि ये 80 टू हो गया। मतलब 75 के दरमियान वाला जो बंदा होता है, CGPA अच्छी है लेकिन इतना कोई खास नहीं है, सर हमारी तो CV थोड़ी सी मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि आगे। तो सर उसमें क्या चीजें हैं जो भाई हम अभी से हम शुरू कर सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा हो गया। अभी से शुरू कर सकता है कि ताकि फाइनल ईयर तक पहुंचने तक, या मतलब कि जब उसका टाइम आएगा, तो बाय द टाइम वो इतना इक्विप्ड हो जाए या स्किल्ड हो जाए कि वो बंदा कहीं पे भी जाके अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है कि ये जो है ना ये मेरा स्किल सेट है, और मतलब कि कहीं पे भी लैग नहीं करेगा। वो क्या चीजें हैं जो अभी हम अभी से ठीक शुरू हो कर गया, सकते हैं? बिल्कुल। देखें, वंस अगेन आई विल से कि ये एक काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन होती है, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग ग्रेड्स होते हैं, फिर एकेडमिक एक्सपीरियंस होता है उनका, उसके अलावा इंटरव्यूज अच्छे होते हैं। इन केस अगर आपका GPA थोड़ा सा कम है, कोई ऐसी बात नहीं है, ढेर सारे स्टूडेंट्स कम GPA के साथ भी स्कॉलरशिप पे गए हुए हैं। आप अपनी बाकी स्किल्स जो हैं उसको तो इम्प्रूव कर सकते हैं ना।
आप इंटरव्यूज को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि हर यूनिवर्सिटी जो है उसको टॉप रैंक जो है ना, वो कहते हैं कि जी मुझे 4/4 3.8, वो स्टूडेंट्स नहीं भी चाहिए होते। उनको ये भी चाहिए होता है कि स्टूडेंट्स हमारे साथ ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कौन करेगा, कौन अच्छा काम करेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स मैं ऐसे ऐसे जानता हूँ। चलें ये ठीक है कि वो कोई अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं जिनका जीपीए कम है। ऐसी बात नहीं है कि आपका कम है तो यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। मैंने पहले भी बताया सिर्फ जीपीए मैटर नहीं करता। आप कुछ ना कुछ अपने साथ स्किल्स, अपनी कुछ ना कुछ स्किल्स इंप्रूव करें, कोई ऐसा एक्सपीरियंस लें, एकेडमिक के अंदर एक्सपीरियंस लें। अगर आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में हैं तो अभी आपके पास 2-3 सेमेस्टर्स हैं, आप उसमें हार्ड वर्क करें। और एक और बात बता दूं, हार्ड वर्क आप उन पे भी करें जो आपके कोर कोर्सेज, जो आपके एफआरपी, आपके पॉलीमार के रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर कोई इशू यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तो आप अपने सीनियर से भी डिस्कस किया करें, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वी कैन नॉट डू दिस, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आपने अच्छे जीपीए वाले स्टूडेंट्स तो देखे होंगे, लेकिन शायद आपने कम जीपीए वाले स्टूडेंट नहीं देखे जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, ठीक है। चलें ये मान लेते हैं कि वो उनकी ज़रा यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, आप उन स्किल्स को इम्प्रूव करें जो आप इंटरव्यू के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते, मेरा तो जीपीए कम है मैं तो नहीं ले सकता। और एक काइंडली माइंड में रखें, इन चीज़ों से डिसअपॉइंट होके प्लीज़ एजेंट्स वगैरह से आप अवॉइड करें, ठीक है। आप खुद करें, आप गलत भी करेंगे, आप लर्निंग आप करेंगे। अगर आप एजेंट्स के थ्रू जाएंगे, अगर मैं होता तो शायद मैं आज यहाँ पे बैठ के आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड ना कर रहा होता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होना था कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। कंपेयर नहीं करना दूसरों को अपने के साथ, वो बहुत अच्छा है मैं अच्छा नहीं हूँ, वो जा सकता है मैं नहीं जा सकता। यू हैव टू डू योर ओन वर्क, ठीक है, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर ओन, ठीक है जी। तो आप मिडल यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके लिए ट्राई कर सकते हैं कि जी अगर आपका समझते हैं कि मेरा जीपीए कम है या चीज़ें, तो जो आपकी मिडिल क्लास यूनिवर्सिटीज हैं आप उनके लिए ट्राई करें। Any other question, please? जी सर, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हम बाय Yes. सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी को या प्रोफेसर को कैसे टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी रिसर्च में मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो प्रोफेसर यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या वो यूनिवर्सिटी ये सब्जेक्ट ऑफर कर रही है। जी गुड क्वेश्चन। मैंने पहले भी मेंशन किया, जब आप यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल ओपन करेंगे वहां पे एक ऑप्शन होता है फैकल्टी का, ठीक है, कि हमने फैकल्टी कौन से रखी हुई है। आप फैकल्टी पे क्लिक करेंगे तो वहां पे टीचर्स प्रोफेसर्स की लिस्ट आ जाएगी। जब आप ओपन करेंगे ना किसी प्रोफेसर की प्रोफाइल को, तो उनकी नीचे स्पेशलिटीज लिखी होती हैं कि मेरी स्पेशलिटी इस रिसर्च के अंदर है और मेरी स्पेशलिटी के अंदर है। तो वहां से आप प्रोफेसर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फैकल्टी प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल के बाद आप इंडिविजुअल प्रोफाइल को ओपन करेंगे। ऊपर उनका इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उनकी एक्सपर्टीज और उनके एक्सपीरियंस और उनका रिसर्च फोकस मेंशन होगा कि मैंने इसमें काम किया है, इसमें काम करवा रहा हूं और इसमें करवाना चाहता हूं इन फ्यूचर। तो वहां से अच्छा ये प्रोफेसर मेरी रिसर्च के रिलेटेड है, तो मैं जो है इन प्रोफेसर को ईमेल करूंगा, इनको कांटेक्ट करूंगा, ठीक है जी। सो यू हैव टू एक्सप्लोर फैकल्टी प्रोफाइल। You got your answer? वालेकुम सलाम। यस सर मैंने ये कहा था कि अगर आप वेब पेज दिखा देते उससे हमें क्लियर हो जाता जरा। वो मैंने ओपन किया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स सर ये एक क्लेम दफा कर रहे हैं कि वो चल नहीं। कैंसिल करके दोबारा वेब वो जो है अपना ब्राउजर की स्क्रीन को शेयर करें, शायद हो जाए। ट्राई करके देखिए प्लीज। चलें मैं दोबारा करता हूँ, लेकिन सॉरी मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम ये यूज़ नहीं करते। हमारे अपने वहाँ पे वो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर हैं तो मैं उनको फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं इसको ट्राई करता हूँ। शायद लेट मी ट्राई अगेन।
ये देखें अब आपको कोई चीज नजर आ रही है, वेब पेज नजर आ रहा है आपको? मैंने अब वेब पेज शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, कैन यू सी दिस? नो सर, नो सर, नो सर। अब देखें, अब आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन चलें लेते हैं आफ्टर द प्रेजेंटेशन जो यूजफुल लिंक्स है ना, जिस तरह ये देखें मैंने यहाँ पे भी दिए हुए हैं कि रैंकिंग बाय सब्जेक्ट देखने के लिए कौन सा लिंक है, स्कॉलरशिप फाइंडर। इसका मतलब ये है कि जब आप ये लिंक ओपन करेंगे ना, ये मैं आपके प्रेसिडेंट को अलग से ये सारे लिंक्स सेंड भी कर दूंगा, वो आपके साथ शेयर कर देंगे, और इनकी मैं ऊपर थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा कि अगर आपने ये चीज़ देखनी है तो ये लिंक ओपन करें, ये देखनी है तो ये ओपन करें, ठीक है, अगर यहाँ पे वेब पेज नहीं भी चल रहा तो। ओके सर। मोस्टम काइंडली मैं एक अगेन लड़का है, ट्राई कर दूं? जी 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 सर यस। वो हैंड रेस किया हुआ था अरसलान ने, मैं वो मोस्टम को कह रहा था कि उसका माइक ऑन कर दे काइंडली, मे बी उसका कोई क्वेश्चन हो। यस श्योर प्लीज। ओके सर। वेट अ मिनट। जी अस्सलाम, क्या आपका नाम कोई बताया आपने, प्लीज बताइएगा। जी सर, मैंने भी यही थोड़ा सा देखना था कि डेमो वेब पेजेस का, लेकिन चले ठीक है सर, वो शेयर नहीं हो सकता तो। आई एम वेरी सॉरी अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। मैं आपको अगेन ये कहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी ना, फॉर एग्जांपल लिंक्स हैं या कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको आपके प्रेसिडेंट को अलग से शेयर, ऊपर थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी दे सर आप दूंगा, डेस्कटॉप वो आपको सबको शेयर कर देंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चले ठीक है। ठीक है, तो परेशान होने की चीज़ें इंशाल्लाह आपके पास पहुंच जाएंगी, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन भी होगी। और उसके बाद एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि लेटर ऑन, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन समटाइम्स स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन नहीं भी आते, तो आफ्टर प्रेजेंटेशन आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, हो, कुछ भी पूछना हो, आप एक क्वेश्चनियर बना के अपने प्रेसिडेंट को सेंड कर दें, ठीक है, मैं उसका आंसर जो है वो एज सुन एज पॉसिबल वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दे दूंगा, वो आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रोसीजर है, कोई भी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही, आप एक क्वेश्चनियर बनाएं, डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट को सेंड करें, वो मुझे शेयर करेंगे, मैं उसका आंसर जो है वो इजीली, मतलब कि इस तरह का प्रिपेयर करूंगा जो आपको समझ जल्दी आ जाए, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे एट द मोमेंट ड्यू टू दिस सॉफ्टवेयर इशू, वो आप वहाँ पे इजीली उन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है जी। वंस अगेन आई विल ट्राई कि आपको वेब पेज नज़र आ जाए, लेकिन देखते हैं आता है कि नहीं आता। डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर कीजिएगा फिर। अब देखें आपको कुछ नज़र आ रहा है वेब पेज? जी 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 सर, सर, आ आ गया। गया। अब आ रहा है। जी सर। चलें अब हम यहाँ पे क्विकली कर लेते हैं, दो चीज़ें करेंगे कि यूनिवर्सिटी कैसे एक्सप्लोर करते हैं, रैंकिंग कैसे देखते हैं, ठीक है। जी सर। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाएंगे, आप गूगल पे लिखेंगे, क्योंकि गूगल पाकिस्तान में फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है सर्च इंजन। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे जी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग, सॉरी दिस इज नॉट क्यू, ये देखें ये पहला लिंक आ जाएगा, ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2021। हम इसको ओपन करते हैं, ये देखें, आप इसको स्क्रॉल डाउन करें। अब ये जो आपको यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है ना, ये ग्लोबल रैंकिंग है, ये ओवरऑल रैंकिंग है, ठीक है। अब हमें ओवरऑल से ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या कौन सी है, हम उसमें देखेंगे। ठीक है, अब उसमें कैसे देखते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रैंकिंग्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बाय सब्जेक्ट। ये आपको वेब पे ही नजर आ रहा है ना, साथ साथ जो मैं इस पे प्रोसेस कर रहा हूँ, आपको वेब पे ही नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग बाय सब्जेक्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे कि जी हमें जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ मुझे उसकी अच्छी यूनिवर्सिटीज बताई जाएं, एक पॉलीमार के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे यहाँ पे, अब ये देखें ये सब्जेक्ट्स आ, ये आर्कियोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स जिनको हम कहते हैं, स्कूल्स भी कहते हैं जिनको, ये सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाकी आ जाएंगे, ये देखें सिविल इंजीनियरिंग आ गई, पेट्रोलियम, सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल एट दिस मोमेंट आई एम इंटरेस्टेड इन सिविल, और एक याद रखें आपका पॉलीमर मटेरियल इंजीनियरिंग के कैटेगरी में फॉल करेगा, मटेरियल्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे सिविल की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बताई जाएं, वो करंटली अकॉर्डिंग टू 2021 रैंकिंग वो कौन सी हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसके ऊपर, ये देखिए ये आ गया। स्क्रॉल डाउन करें, ये ईयर है, आप ईयर चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये है कि किस कंट्री में वो इस टाइम मतलब कंट्री में सिचुएटेड है। तो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहली मैसाचुसेट्स है। ठीक है, इसी तरह वो दूसरी डेल्फ्ट है नीदरलैंड की। और स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो आपको यूनिवर्सिटीज़ रैंक वाइज नज़र आती जाएंगी। इसी तरह आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं जी मैंने कंट्री में देखना है, फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, तो आप पाकिस्तान में कौन सी हैं, आप यहाँ से सब्जेक्ट की डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें मैंने सिविल सेलेक्ट किया हुआ था, आप यहाँ पे कोई और डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कहते हैं जी मैंने BSc के लिए देखना है, मैंने मास्टर PhD के लिए देखना है, तो आप इस वेबसाइट से हर तरह की रैंकिंग जो है, हर तरह के लेवल की, वो आप देख सकते हैं। और ये ग्लोबल रैंकिंग है। फॉर एग्जांपल ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ये दुनिया में सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 3रे नंबर पे है, इसका मतलब ये है। ठीक है, एंड सिमिलरली सो ऑन एंड सो ऑन। आप कोई भी यूनिवर्सिटी, and in fact this is my university where I am studying right now. I am pursuing my PhD, so it ranks at number 10 in the world. So आप किसी भी यूनिवर्सिटी को आप किसी भी लेवल पे देख सकते हैं। ठीक है जी, ये तो बात हो गई रैंकिंग की। अब है कि यूनिवर्सिटी को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, कोई भी है ना, उसको कैसे एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये यूनिवर्सिटी अच्छी लगी, तो अब मैंने इसको कैसे एक्सप्लोर करना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे देखनी है। ये देखें ये वो है, इसको मैं ओपन करूंगा। अब ये देखें एडमिशन्स की बात आ गई, सारे यहाँ पे पोर्टल जो हैं वो सॉरी यहाँ पे सेक्शन दिए हुए हैं। अब एडमिशन पे क्लिक करेंगे, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के लिए ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो ऑप्शंस होते हैं, ये सेम होते हैं। एडमिशन जिसके लिए भी, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट है, इसको ओपन करेंगे तो आगे रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। यहाँ पे एक स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि प्रोफेसर्स को कैसे कहते हैं। ये देखें फैकल्टी एंड स्टाफ, कि ये हमारी फैकल्टी जो है वो ये है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये है, मैकेनिकल के लिए ये है। तो उसके बाद फिर आप लेट अस सी कि ये क्या कहते हैं यहाँ पे। ये देखें अच्छा, एक और बात, जब आप फैकल्टी देखेंगे तो फैकल्टी सिर्फ आपको डिपार्टमेंट की फैकल्टी नज़र नहीं आएगी। कुछ ऐसी फॉर एग्जांपल जिस तरह एक चाइनीज़ की एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग है, अगर आप किसी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में इस यूनिवर्सिटी के भी कुछ मेंबर्स हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के हमेशा अच्छी ही यूनिवर्सिटीज़ के मेंबर्स होते हैं, आप ये भी दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इस तरह आप एक्सप्लोर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ देखेंगे, और सारी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे गिवन होती हैं।
ठीक है। उसके अलावा अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ का लेटेस्ट न्यूज़ है आप वो देख सकते हैं। हो सकता है इस ऑप्शन के अंदर, इस न्यूज़ के अंदर उन्होंने कोई स्कॉलरशिप की बात की हो, कुछ नए एडमिशन की बात की हो, या कुछ इस तरह से बात की हो। अगर आप ओवरऑल आइडिया देखना चाहते हैं यूनिवर्सिटी का, तो वो जनरल इन्फॉर्मेशन में है जी, ये कब बनी थी, इसकी रैंकिंग क्या है, इसके डिपार्टमेंट अच्छे कौन से हैं। तो बात करने का मकसद ये है, कोई भी, सिर्फ ये यूनिवर्सिटी नहीं, कोई भी आप ओपन करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। अगर एडमिशन पे क्लिक करते हैं, इंटरनेशनल पे क्लिक करते हैं, तो आप देखें आगे इसकी रिक्वायरमेंट्स आपको नज़र आ जाएंगी। जी आपकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, आपने ये करना है, ये देखें अंडर ग्रेजुएट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ग्रेजुएट के लिए, फिर फाइनेंशियल एड भी, स्कॉलरशिप, कि हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए नीचे उसकी भी डिटेल, सारी डिटेल। फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएट या फाइनेंशियल को देखना चाहता हूँ, इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। तो जो एजेंट्स करते हैं वो यही चीज़ें होती हैं कि स्टूडेंट्स खुद एक्सप्लोर नहीं करते, वो सिर्फ क्या आपको पैसे देंगे, हमारा बस एडमिशन करवा दें। तो वो फिर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी भी नहीं होगी जहाँ पे वो एडमिशन करवाएंगे। रिसेंटली मुझे आ गया, कुछ दिन पहले की बात है, किसी अननोन पर्सन ने ना मुझे एक फाइल सेंड की, एक लेटर सेंड किया। सिर्फ ये लिखा हुआ था नीचे कि हमें ये बताएं कि ये ओरिजिनल है या फेक है। अब देखिए एक अननोन पर्सन आपसे इस तरह का क्वेश्चन करे, आप जानते भी नहीं हैं, और फिर आपको चीज़ें भी सही बताना पड़ती हैं, अब ये भी नहीं पता कौन पर्सन है। तो वो लेटर इस ही यूनिवर्सिटी का, हमारी यूनिवर्सिटी का वो लेटर था, और वो फेक लेटर था। और मैंने उनको बता दिया था कि ये फेक लेटर है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक स्टैंडर्ड होता है जो चीज़ें वो किस तरह से लिखते हैं। तो जब मैंने उनको रिप्लाई किया ना कि दिस इज़ फेक, तो फिर उस स्टूडेंट था वो बेचारा, फिर उसने बताया जी मुझे ये एजेंट्स ने बना के दी है, मेरे से उन्होंने पैसे लिए हैं, और मुझे ये कहा है कि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमने आपका यहाँ पे एडमिशन करवा दिया है, सो नाउ यू कैन गो ओवर देयर। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ सच, ठीक है। तो इस तरह ना किया, चीज़ों को आप क्रॉस चेक करें। मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ, मेरी भी चीज़ों को आप क्रॉस चेक करें, ठीक है, कि मैं सही कह रहा हूँ या मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो उनके पास ना जाए। हाँ, इंफॉर्मेशन लेना, हेल्प लेना, वो मैं भी लेता था, शायद आप भी ले सकते हैं हेल्प, लेकिन उन पे रिलाई, एजेंट्स वगैरह के ऊपर, ठीक है, उन चीज़ों के ऊपर रिलाई ना करें। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये एजेंट्स बंदे को किस तरह बात करते हैं, मैं वैसे एक एजेंट के पास, एक इस तरह समझे जी मैं अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे गाइड करें, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये क्या है। और बिलीव मी, उसने ऐसी ऐसी बातें की कि आम स्टूडेंट तो बेचारा वाकई मान जाएगा, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब मैं थोड़ी सी उसके साथ टर्मिनोलॉजीज यूज़ की, जो कि अब जाहिर बात है पता तो होती हैं जब आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं, तो फिर उसने पता मुझे क्या आंसर दिया, देखें जी, जितना हम इस ऑफिस में हमें आइडिया था हमने आपको बता दिया, बाकी हम अपने हेड ऑफिस से पूछेंगे, तो हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। जब तक मैंने नहीं कुछ कहा आगे से, वो मुझे बताते रहे हैं। जब मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की, और वो क्रॉस क्वेश्चनिंग वो वही कर सकता है जिसको इन चीज़ों का पता होता है, या आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। चीज़ें मैंने की टू दी पॉइंट वाली, तो मुझे कहना शुरू हो गए जी हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, हम आपको हेड ऑफिस से जो है वो, तो प्लीज़ बी अवेयर। और मेरे क्लास फेलोज नीदरलैंड से भी हैं, फ्रांस से भी हैं, डिफरेंट कंट्री से हैं, तो कभी वैसे उनसे पूछो ना कि आपका एडमिशन कैसे हुआ है। कभी किसी बंदे ने, एजेंट वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे पास है, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, या मतलब कि इस तरह से अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो लोग तो खुद करते हैं अपना काम सारा, वो खुद प्रोसेस करते हैं। तो जब सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गिवन हैं, तो हम क्यों नहीं करते। सो प्लीज़ ट्राई बाय योरसेल्फ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपके भी सीनियर्स फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने गए होंगे, आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप अपने प्रेसिडेंट को सेंड कर सकते हैं जी हमारे ये क्वेश्चन है, काइंडली आप उनसे पूछ दें। तो जिन चीज़ों का जितना मुझे आइडिया होगा मैं अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट डू नॉट वरी एंड डू नॉट लूज होप, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। लास्ट क्वेश्चन ले लें अगर किसी का क्वेश्चन है तो। आप एग्जाम ऑनलाइन ले
बाबा टीवी ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ जी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू। जी सर, मैंने पूछना था कि वो आपसे पर्सनली ये कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे सर? पर्सनली कांटेक्ट चलें, इस तरह है कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यस दिस वन, ये देखें यहाँ पे फेसबुक ग्रुप का एक लिंक गिवन है। ये आप कह सकते हैं समटाइम्स इट इज़ रन बाय मी, सॉरी टू से सर, मेरे वो पास टाइम होता है। सॉरी टू से सर, वो चलें मैं दोबारा नहीं शेयर शो नहीं करता हो हूँ, चलें मैं दोबारा शेयर करता हूँ, एक मिनट। अब आपको स्लाइड शो हो रही है? या सर अब हो रही है। स्लाइड शो हो रही है आपको? चलें, ये फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पे ये देखें लिंक मैंने दिया हुआ है। समटाइम्स मेरे पास टाइम होता है और मैं वहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते भी हैं, आंसर भी करता हूँ, और आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यही लिंक आपको वैसे मैसेज भी आ जाएगा, या आपके प्रेसिडेंट आपको जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स उसमें शेयर भी कर देंगे। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है? तो मैं आपका उसको ओके सर, ठीक है जी। हाँ जी, so kindly if you have any question you have to ask the academic questions। आपके क्वेश्चंस एकेडमिक के रिलेटेड होने चाहिए और इंफॉर्मेशन के रिलेटेड होने चाहिए। जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चंस वो होने चाहिए, सही है? तो मैं फिर अकॉर्डिंगली उसके आंसर दे दूंगा। ओके सर, जी थैंक यू सर। सो मच। और कोई भी थैंक यू सो क्वेश्चन हो, मच सर फॉर प्रीशियस टाइम। नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। सर कोई भी क्वेश्चन हो आप ओपनली पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप मैं आंसर दूंगा। नहीं पता होगा तो मैं आपसे सॉरी कर दूंगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छा चलें, अब शायद और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। लास्ट इंफॉर्मेशन है, एक चीज़ होती है MS लीडिंग टू PhD, शायद आपने इसके बारे में सुना हो। MS लीडिंग टू PhD का मतलब ये होता है कि फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ आपको 5 साल प्रोग्राम करवाती हैं, आप मास्टर करते हैं पहले और साथ ही आप PhD में एनरोल हो जाते हैं। तो 5 साल के बाद आपको PhD की डिग्री मिलती है, ठीक है? अलग अलग करेंगे, 2 साल का मास्टर होगा और फिर वो PhD आपकी जो है वो मिनिमम तो 3 साल की होती है, लेकिन 4 साल भी लग सकते हैं। तो करें, अगर आपने एडमिशन लेना है तो MS लीडिंग टू PhD प्रोग्राम में लें, ताकि आपको फिर इन फ्यूचर PhD के लिए अलग से अप्लाई ना करना पड़े, चीज़ें अलग से ना देखना पड़े। तो आप उसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं, MS लीडिंग टू PhD, ठीक है? उसका एक फ़ायदा भी होता है, फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप स्टार्ट में मिल जाएगी तो वो थ्रू आउट प्रोग्राम के लिए मिल जाएगी, आपको अलग से PhD के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक इसको आप कह लें डिसएडवांटेज इसका ये है कि इन फ्यूचर अगर आप कंट्री चेंज करना चाहते हैं, आप इंस्टीट्यूशन चेंज करना चाहते हैं फॉर PhD, तो फिर आपको ये उसके लिए आपको सस्पेंशन केस जो होता है कि मैं अपनी स्टडी यहाँ पे सस्पेंड करता हूँ क्योंकि मैंने मास्टर कर लिया है, तो मैं PhD किसी और कंट्री से करूँगा, तो फिर उस पॉइंट पे आपको जो डिग्री अलॉट की जाएगी, आपको दी जाएगी, अवार्ड की जाएगी, वो फिर मास्टर की होगी, ठीक है? तो इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। लेकिन अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है तो फिर मेरी सजेशन आपको यही है कि आप MS लीडिंग टू PhD प्रोग्राम में एडमिशन लें, दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। जी, any other question please?
So No, sir. Thank you so much. don't have any. Okay, no problem. Thank you so much बस for your सिर्फ end पे precious time. no problem, no problem. Concluding remarks यही हैं. Please do not worry. ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते. You can apply. You can obtain the scholarship. Start right now. थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करें. And seek help when you need. ठीक है, हेल्प लें, स्टार्ट करें और ये जहन से निकाल दें कि मेरा जीपीए कम है तो मेरा नहीं होगा. यू हैव अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज अदर देन जीपीए, वो आपको काम आएंगी आगे. ठीक है, सो एवरीबॉडी कैन स्टडी अब्रॉड, एवरीबॉडी कैन हैव स्कॉलरशिप. ठीक है, चलें, ये भी बात सही है कि हाई जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं थोड़ा सा उनका क्राइटेरिया टफ होता है, लेकिन ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते. यू कैन डू. आई विल हेल्प यू इफ़ यू विल आस्क प्रॉपरली. किसी और से हेल्प लें, खुद ट्राई करें, चीज़ों को खुद देखें. मैंने की थी और खुद चीज़ें करेंगे ना तो कल को आप भी अपने जूनियर्स को, अपने भाई को या किसी फैमिली मेम्बर दोस्त को गाइड कर सकेंगे. अगर आप खुद करेंगे, एजेंट्स के थ्रू करवाएंगे तो कल को आप भी किसी को गाइड नहीं कर सकेंगे. ठीक है, तो वो एम्बैरसमेंट से बचने के लिए चीज़ें खुद करें, खुद ऑब्टेन, खुद विन करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें. That's what I have to say you. Thank you so much, sir, for your precious time. Now I would like to call President Society of Polymer Engineering, Mr. Ihtisham Ahmed, for thanking word. Kindly, sir, mic on कीजिएगा अपना. Assalamu alaikum everyone. Good afternoon to our honorable guest, Mr. Ron Hasib. First of all, I would like to thank you for sharing your experience about the scholarship for our higher education. And again, on the behalf of our entire institute and from Society of Polymer Engineering, I would like to thank you for sharing your experience and great effort by the team, Society of Polymer Engineering, especially the media team and the event management team. And it's a great event organized by us with the efforts of all the members. Thank you very much. Thank you so much, sir. This is all from our side. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Okay, ji, thank you very much. I will leave now. So if you have any other question, you want to ask something, send it to your president and he will contact me and I will answer you over there. Thank you very much. Have a good day ahead. Thank you, sir. Thank you, sir. Allah.